Good morning, student. Today we are going to discuss about the reflected of light can be reflected again. यदि कोई लाइट रिफ्लेक्ट हो रहा है, क्या वह फिर से रिफ्लेक्ट हो सकता है, यह हम लोग जानेंगे. I think all of you visited the salon because we all go to the salon to cut our hair. When we are facing in front of mirror that is placed in front of you, and in front of you there is another mirror in the opposite wall that is also placed perpendicular, not perpendicular, parallel to each other. मतलब एक मिरर तो आपके सामने होती है, सामने वाली दीवार पे होती है, और एक मिरर आपके अपोजिट वाले क्या है, दीवार पे होती है. आप गौर से देखेंगे इनफाइनाइट आपका इमेज बन रहा है. क्या आपने कभी देखकर जो है आपको अचंभित नहीं हुए? आपको कभी सरप्राइजिंग नहीं हुआ? इसी गुत्थी को आज सुलझाने वाले हम लोग. इसी को हम लोग बोलते हैं रिफ्लेक्टेड लाइट कैन बी रिफ्लेक्टेड अगेन. इसी टॉपिक को, इसी कंसेप्ट को हम लोग जानना चाहते हैं कि आखिर ये होता कैसे है. आखिर हम तो एक ही हैं. How are multiple images is formed? What happened behind it? What's the reason? Today we are going to find about the reason. Before we are starting our topic, first of all, see what is the written in alloys color. Do we see all objects due to reflected light? No, we cannot see. Nearly everything we can see due to reflected light. बोला जा रहा है हाँ, जिस पे लाइट रिफ्लेक्ट करता है नियरली हम सबको देख सकते हैं. लाइट जो फॉर एग्जाम्पल रिसीव लाइट फ्रॉम द सन एंड रिफ्लेक्ट इट. हाउ वी कैन सी द मून. द ऑब्जेक्ट विच शाइन इन द लाइट ऑफ अदर ऑब्जेक्ट आर illuminated object. Yes, when the lights reflect fall on any object, then we can easily see them, and this type of object is known as illuminated object. What is illuminated? याद रखिएगा, illuminated object, because when light fall on that object and after a reflection received by your eye, in this way we are able to see that object. And the object that do not emit their own light and it is visible in the presence of another light, that is known as illuminated object. What is things? And we all know the object that emits their own light, the object that have their own light, that is known as luminous object. Sun हो गया, torch हो गया, tube light हो गया. These are the luminous object. The luminous object can be also defined into two parts: the natural luminate object and the artificial luminous object. The sun, the star, the moon, this is the natural luminous object, and the tube light, torch, bulb, these are the artificial luminous object. There are other objects which give their own light, such as the sun, fire, flame of the candle and the electric lamp. These light fall on our eyes. इस तरह यह लाइट हमारे आँख में रिसीव्ड होते हैं by the photoreceptor cell that is present in our eye. We are also going to discuss the eyes, the concept of eyes in later chapter या later topic of this chapter. That is how we see them. The object which emits their own light are known as luminous object. एग्जाम में पूछा जा सकता है व्हाट इज लुमिनस ऑब्जेक्ट. यू नो दैट द ऑब्जेक्ट विच हैव देयर ओन लाइट इज नोन एज लुमिनस ऑब्जेक्ट. नाउ कम अगेन बैक टू आवर टॉपिक. रिफ्लेक्टेड लाइट कैन बी रिफ्लेक्टेड अगेन. पहले पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम इस आसान भाषा में हम आपको समझा देते हैं. देखिएगा, रिकॉल द लास्ट टाइम यू विजिटेड अ हेयर ड्रेसर. याद कीजिए कि आपने कब पहले लास्ट विजिटेड, आपके पिछले कब आप गए हैं बाल कटाने के लिए. शी और ही मेक यू सिट इन फ्रंट ऑफ द मिरर आफ्टर योर हेयर इज कट कंप्लीट. ही होल्ड अ मिरर बिहाइंड यू इन सो दैट यू कैन हेयर हैज बीन कट. आप देखेंगे यदि किसी
सलून में जो है एक दीवार जो फ्रंट वाला दीवार है और इस दीवार पे भी अगर मिरर नहीं है तब एक देखिएगा बाल काटने के बाद एक जो बार्बर होते हैं यहाँ पे एक मिरर होल्ड करते हैं। जैसे ही ये मिरर होल्ड करेगा इस मिरर और इस मिरर में पैरेलल जो है इनका अरेंजमेंट होता है, एकदम सीधा ये रखेगा और जैसे ये पैरेलल अरेंजमेंट होता है मल्टीपल रिफ्लेक्शन आप देख सकते हैं। मतलब आपका ओरिजिनल इमेज इस मिरर में बना, फिर इस मिरर में, फिर इस मिरर में, फिर और इनफाइनाइट इमेज बनेगा और धीरे धीरे आपका इमेज का साइज छोटा होता जाएगा। अभी हम लोग देखेंगे कैसे होता है। इस तरह हम लोग पीछे वाला पोर्शन भी देख सकते हैं कि हमारा बाल सही से कटा है या नहीं कटा है। डू यू नो हाउ यू कुड सी द हेयर at the back of your head? Yes, we can see by the multiple reflection या reflection. Due to reflection we are see the hair that is behind, the hair that is current in our behind portion of our head. पहले recall having constructed a periscope, पहले ने एक पेरिस्कोप एज ए एक्सटर्नल एक्टिविटी क्लास 6 में द पेरिस्कोप मेक यूज ऑफ टू प्लेन मिरर, उसमें हम लोग दो प्लेन मिरर का इस्तेमाल करते थे। कैन यू एक्सप्लेन हाउ रिफ्लेक्शन फ्रॉम द टू मिरर इनेबल यू टू सी ऑब्जेक्ट विच आर नॉट विजिबल डायरेक्टली? पेरिस्कोप आर यूज इन सबमरीन टैंक एंड ऑल्सो बाई सोल्जर इन बैंक टू सी थिंग्स आउटसाइड। अब देखिएगा पेरिस्कोप जो है सबमरीन यूज़ करते हैं, जब जाते हैं समुंदर के अंदर तो ऊपर वाले जो है समुंदर की शिप उनसे कितना दूर है। पेरिस्कोप में हम लोग क्या करते हैं, एक डिवाइस इस तरह का एक शेप होता है, इस तरह से देखते हैं। एक मिरर यहाँ पे रहता है, एक मिरर यहाँ पे रहता है, उसकी लाइट इस पे, उसकी इमेज इस पे बनती है और यहाँ पे हम लोग इस तरह इसको क्या है देख पाते हैं। तो पेरिस्कोप में दो मिरर लगाते हैं। ड्यू टू रिफ्लेक्शन वी आर एबल टू सी द क्या, वी आर एबल टू सी द ऑब्जेक्ट। अब हम लोग देखते हैं, आगे चलते हैं। आगे हम लोग का है मल्टीपल इमेज। देखिए कंसेप्ट इज वेरी क्लियर एंड वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द मल्टीपल इमेज। देखिए सपोज दैट दिस इज अ मिरर, दिस इज अ मिरर और एक मिरर हमने जो है और सपोज दैट दिस इज अ मिरर एंड दिस इज ऑल्सो अ मिरर, दिस इज ऑल्सो अ मिरर। ठीक है, दिस टू मिरर आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर एंड सपोज दैट हियर वी ब्रिंग कैंडल। ठीक है, आप देखेंगे सबसे पहले कि इस पे जो है जैसे ही ये लाइट फॉल करेगा तो इस पे एक इमेज बनेगा, फिर ये वाला कैंडल का इमेज इस पे बनेगा। मान लीजिए ये ए हो गया, ये बी हो गया, फिर ये लाइट रिफ्लेक्ट करेगा, फिर इस पे बनेगा, फिर इस पे बनेगा, फिर इस पे बनेगा, फिर इस पे बनेगा। इस तरह जो है ए वाला जो पहला जो इमेज बना है दैट इज नोन एज ओरिजिनल, और ये सब जो बना है जो इनफाइनाइट इमेज है दैट इज डुप्लीकेटेड इमेज। इसका यहाँ बनेगा, फिर रिफ्लेक्ट यहाँ, फिर यहाँ, इस तरह से आप देखेंगे। फिर से एक बार आप देख लीजिए, सपोज दैट दिस इज ए सपोज दिस इज ए सरफेस एंड एक मिरर आप परपेंडिकुलर यहाँ रखा है, आपने एक यहाँ रखा है। सपोज दैट दिस टू मिरर आर पैरेलल टू ईच अदर, दोनों मिरर पैरेलल हैं। यहाँ पे आपने एक जलती हुई कैंडल को बनाए। अब ये जैसे कैंडल को बनाएंगे तो देखेंगे कि इसका लाइट रिफ्लेक्ट करेगा तो पहले यहाँ इमेज बनेगा। मान लीजिए सपोज दैट ए बना, फिर ये जब इस इमेज रिफ्लेक्ट करेगा तो यहाँ बी बनेगा, फिर यहाँ सी बनेगा, यहाँ डी बनेगा, यहाँ ई बनेगा, यहाँ एफ बनेगा और ये जो है इनफाइनाइट इमेज बनेगा। और हर इमेज की जो डिस्टेंस होगी, एक जो साइज होगी, एक पिछले वाले इमेज से थोड़ा छोटी होती जाएगी। तो इस तरह जब दो मिरर हम लोग पैरेलल रखते हैं तो मल्टीपल, ड्यू टू रिफ्लेक्शन मल्टीपल इमेज इज फॉर्म। घबराने की कोई बात नहीं है, जब भी दो मिरर हम लोग पैरेलल रखते हैं तो ड्यू टू रिफ्लेक्टेड अगेन एंड अगेन large number of infinite number of image is formed. Now you are aware that plane mirrors form only a single image of an object. What happen if two plane mirror are placed in combination?
अभी देखा हमने दो मिरर का जो है अगर पैरेलल रख दिए तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ इमेज बन रहा है। इस तरह से अब हमारा जो है हम लोग का जो है नेक्स्ट टॉपिक आने वाला है। इसमें देखिए जब दो मिरर को हम लोग परपेंडिकुलर रख देते हैं, जब दो मिरर का परपेंडिकुलर रख दिए हैं, इस एक्टिविटी में बता रहा है कि दो मिरर आप लीजिए और उनके बीच का कई एंगल पे उनको जो है आप क्या कीजिए फाइंड आउट कीजिए। यहाँ पे देखिए जब दो मिरर को हम लोग परपेंडिकुलर रख दिए हैं, सपोज दैट एक यहाँ मिरर है और इस यहाँ मिरर है, दोनों के बीच का 90 डिग्री है, क्या है 90 डिग्री है। तो एक तो मान लीजिए यहाँ पे कैंडल है, इस पे लाइट रिफ्लेक्ट किया, यहाँ बनाया, फिर इसका लाइट रिफ्लेक्ट किया, यहाँ किया, और फिर एक बनेगा बीच में, मतलब यहाँ 3 इमेज बनेगा। अगर 90 डिग्री है तो इमेज कितना बनेगा 3 डिग्री। अगर मान लीजिए 60 डिग्री है, अभी आपको हम एक फॉर्मूला बता देंगे, आप चुटकी में निकाल पाइएगा कि हाउ मेनी इमेज इज फॉर्म when the angle between the two mirror are of 60, 45, 90, etc. and etc. What is this? This is a very easy chapter and this concept is very easy, but you have to remember that formula. If you are going to find the number of images, you just remember this formula. You just remember this formula. This formula is nothing. You can write here number of images फाइंड करने का एक फॉर्मूला है, उस फॉर्मूला है 360 डिवाइडेड बाई थीटा। थीटा इज द एंगल बिटवीन द, थीटा इज व्हाट इज द एंगल बिटवीन द टू मिरर, दो मिरर के बीच में जो एंगल बन रहा है, एंड -1। दिस इज द फॉर्मूला। यू कैन फाइंड द नंबर ऑफ इमेज फॉर्म by the two mirror when are placed at a distance of at a angle of, कितने के एंगल के बीच में है। you can apply this formula and you are easily find the number of images is formed। आइए अब हम लोग देखते हैं, सपोज दैट हमने देखा कि मान लीजिए यहाँ पे नंबर ऑफ इमेजेस, यहाँ पे बोल रहा है कि 90 डिग्री नंबर ऑफ इमेजेस अगर हम लोग निकाल देते हैं 90 डिग्री पे, तो देखिए यहाँ पे 360 डिवाइडेड बाई 90 -1, तो ये 90 से कितने बार में कटेगा 4 बार में, और 4 - 1 कितना हो जाएगा आपका इमेज बन जाएगा 3। क्या बन जाएगा 3। तो हम लोग इजीली कैसे, यहाँ पे एक तो ये ओरिजिनल बन रहा था, यहाँ पे पहला दूसरा, याद रखिएगा ये जो बीच वाला है आधा इसका है और आधा इसका है, तो बीच वाला जो इमेज है वह दोनों का आधा आधा, तो कितना इमेज बना 3 इमेज बना। इस तरह से अगर इस फॉर्मूला याद हुए, नंबर ऑफ इमेजेस 360 बाई थीटा -1, थीटा इज नथिंग, थीटा इज द एंगल बिटवीन द टू मिरर। वेरी इजी, वी कैन इजिली फाइंड द नंबर ऑफ इमेजेस इज फॉर्म। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं 45 डिग्री रखेंगे तो कितना होगा 60 डिग्री उतना रखेंगे। अब देखिए प्लेन मिरर के बीच में जो आपको होता है वह होता है क्या 180 डिग्री। 180 डिग्री पे हम लोग प्लेन मिरर को एकदम स्ट्रेट रखते हैं। जब 180 डिग्री आप रखेंगे तो देखिएगा इमेज कितना बनेगा। मान लीजिए कि नंबर ऑफ इमेजेज अगर आपको निकालना है 360 बाई 180 -1, ये 2 बार में कटता है, 2 - 1 आ जाएगा 1। इसके मतलब हम लोग प्लेन मिरर में देखते हैं तो कितना इमेज बनता है भाई 1 बनता है। व्हाट्स इजी, वेरी इजी, and it will be very interesting if you are in the classroom. Unfortunately we are not in the classroom. If you are present in the classroom, we take the two mirror and find out the number of images is formed. Inshallah, as the school is open, we are going to practical this activity 16.5, very interesting activity. आप इस वीडियो को देखें, समझने की कोशिश करें, और जो भी दिक्कत है वो हमको जो है कॉल करें। हम लोग आगे जो है नेक्स्ट आगे हम लोग पढ़ेंगे।